السلام علیکم، آج 5 بجے میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں علی عباس اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لغاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اہم خبر کے ساتھ کہ ٹھٹا میں گھاروں کے قریب ڈاکو نے رکشہ سوار مسافروں کو لوٹنے کی کوشش کی اور اس دوران مسافر نے فائرنگ کر دی، جس سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا ہے جبکہ ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے امر لال سے۔ جی امر لال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، گھاروں کے قریب آبرا روڈ پر ڈاکو نے دن جانے روڈ بنا کر کے گھاٹوں کی لوٹ مار کی جا رہی تھی۔ اس دوران ایک رکشے کو لوٹنے کی کوشش کی، اس وقت ڈاکو اور مقامی افراد میں فائرنگ ہو گئی۔ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک ڈاکو گولیاں لگنے سے اسی ٹائم مارا گیا تھا، جبکہ ایک مقامی جو زمیندار تھا اس کو بھی گولیاں لگنے سے وہ زخمی ہو گئے، جبکہ جو 2 ڈاکو تھے وہ فرار ہو گئے تھے، جہاں پر پولیس اور مقامی لوگوں نے ان کا گھیراؤ تنگ کر دیا۔ اس کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں پولیس نے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ گھاڑوں کے قریب بابرا جو روڈ ہے، یہاں پر ہر روز لوٹ مار ہوتی ہے، یہاں پر کئی واقع ہو چکی ہے، لیکن آج تک پولیس نے یہ پہلی مرتبہ مقامی افراد کے ساتھ مل کر جو ڈاکو گرفتار کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امر لال۔ آگے بڑھیں گے۔ مردان پولیس نے دوہرے قتل کیس میں مطلوب ملزم آصف کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے سال 2011 میں اپنی سوتیلی ماں اور اس کے رشتہ دار کو قتل کیا تھا۔ واقعے کے بعد ملزم قطر فرار ہو گیا تھا، جس کی گرفتاری کے لیے مردان پولیس نے انٹرپول سے رابطہ کیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ علی پور میں 72 افراد نے مزدوری مانگنے پر 2 بھائیوں پر بدترین تشدد کیا، سر کے بال، مونچھیں اور داڑھی مونڈ ڈالی۔ ملزمان نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دی۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے طارق قریشی سے۔ جی طارق، بتائی گئی یہ معاملہ کیا ہے اور علاقہ پولیس کہاں ہے؟ جی بالکل، یہ جو 3 بھائی ہیں، یعنی کہ 2 سگے بھائی ایک کزن ہے، یہ علی پور کا علاقہ سیدپور ہے، اس کا جو موضع لتی ہے وہاں کے رہائشی ہیں۔ ان لوگوں کو جو آصف نامی ایک ٹھیکیدار ہے جو کہ مالٹے کے باغ کے اندر کام کرنے کے لیے جو ہے انہیں سرگودا لے کر گیا، وہاں پر یہ محنت مزدوری کر رہے تھے۔ 2 ماہ تک جو ہے انہوں نے وہاں پر کام کیا، ان کے تقریباً کوئی 50 سے 60 ہزار روپے مزدوری بنتی تھی۔ ان لوگوں نے جب اس ٹھیکیدار سے وہاں پہ ڈیمانڈ کی ہے تو اس نے جو ہے ان کو کہا کہ پہلے ابھی مزید کچھ اور کام کریں، پھر اس کے بعد اپنے گھر جانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، جب ان کو پیسے نہیں ملے تو یہ وہاں سے جب آنے لگے ہیں تو راستے کے اندر جو ان کو واپس لے آئے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے جو ہے نا آپ کے پیسے بھی دیتے ہیں اور تھوڑا سا کام ہے وہ بھی کر دیں۔ تو اس کے بعد وہاں پر لا کر جو ہے سرگودا کے اندر جو ہے ان کے جو ہے انہوں نے 3 افراد تھے، آصف شاہ، قدیر اور نواب۔ ان لوگوں نے جو ہے ان کے سروں کے بال مونڈے، بھویں مونڈی، مونچھیں اور جو ہے ان کی داڑھی مونڈ کر جو ہے ان کی تشدد کیا اور ان کی سوشل ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی۔ اس کے بعد جو ہے جو ان بچوں کے جو لوائقین ہیں ان کو پتہ چلا ہے، وہ سرگودا گئے ہیں، وہاں پر جا کر جو ہے انہوں نے ان کی منت سماجت کی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں سے بازیاب کروایا۔ اور جو اس کے بچے کے والد کا کہنا ہے کہ مجھ سے مزید انہوں نے 8,000 روپے لیے، تو اس کے بعد ہم یہاں پہ لے کے آئے۔ ان لوگوں نے علی پور آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ تمام موقف جو ہے اپنا میڈیا کو دیا ہے، اور وہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی وہ بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کو دیا ہے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ظلم کیا گیا ہے۔ تو جو سرگودا کے بعد سب جو لوگ ہیں وہ ٹھیکیدار ہیں، ٹھیک ہے، طارق قریشی ہمیں تفصیلات دے رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں کبڈی کے انٹرنیشنل کھلاڑی محمد شکیل جٹ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شکیل جٹ قومی کبڈی ٹیم اور پاکستان آرمی کے مایہ ناز کھلاڑی تھے۔ خبر دیں آپ کو کہ جلال پور پیروالوں میں مہنگائی کے خلاف باراتی بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر دلہا ایک ہی گاڑی پر بارات لے کر دلہن لینے پہنچ گیا۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے مظفر ایاز طاہر سے۔ جی مظفر۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا میں۔ مہنگائی نے بہت زیادہ عوام کو پریشان کر رکھا ہے، جس طرح بہت زیادہ شہری پریشان ہیں، اسی طرح میرے ساتھ ایک دلہا موجود ہے جو بہت دھوم دھام سے بارات لے جانا چاہتا تھا، لیکن پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اپنی ایک گاڑی میں دلہن لے جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک دلہا موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ بہت ہی دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتا تھا، مہنگائی کی وجہ سے مجھے سادگی سے شادی کرنی پڑ گئی ہے۔
اور میں جو کہ دھوم دھام سے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور سادگی سے صرف ایک ہی کار لے کے جا رہا ہوں، چند بندوں کے ساتھ جا رہا ہوں، میں شادی کرنے نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ مہنگائی کم کرے اور پیٹرول کو سستا کر دے، مہربانی کریں۔ جی بالکل، اس نے کہا کہ میں بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتا تھا، صرف پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ایک گاڑی پر دلہن لینے جا رہا ہوں۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر پیٹرول کم کرے، جو مزید شادیاں ہونی ہے، جو مزید دلہے نے دلہن لینے جانی ہے، وہ دھوم دھام سے لے جا کر شادی کر سکتے ہیں۔ جی موٹر سائیکل آگے کیوں نکالا؟ پھالیا میں 7 بااثر نوجوانوں نے طالب علم کو ڈنڈوں سے پیٹ ڈالا، متاثرہ نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ بااثر ملزمان نے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی۔ تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے تنویر حسین صابر سے۔ جی تنویر حسین، بتائیے گا۔ غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ پھالیا میں 7 بااثر نوجوانوں نے طالب علم کو ڈنڈوں سے پیٹ ڈالا، متاثرہ نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ مانسیرا کے علاقے اوگی میں ایف سی کی بھرتیوں میں سینکڑوں افراد نے اپلائی کیا ہے۔ اعلیٰ حکام نے کیمروں کے ذریعے بھرتی کے عمل کی نگرانی کی۔ تفصیلات جانیں گے محمد آصف خان کی اس رپورٹ میں۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اگی میں مختلف اقوام کے نوجوانوں کی بھرتیوں کا عمل خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ ڈی او ایف سی اگی محترمہ منازہ کرامت نے اے ڈی او ڈاکٹر عمر اور دیگر پر مشتمل ٹیم کے ذریعے بھرتیوں کے عمل کی نگرانی کی اور بھرتیوں میں شفافیت لانے کے لیے کمانڈنٹ ایف سی صلاح الدین محسود کی ہدایت پر پہلی مرتبہ الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ سرکاری طور پر بھی ویڈیو کیمروں کے ذریعے تمام عمل کی ریکارڈنگ اور مانیٹرنگ کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے ڈی او ایف سی اور اے ڈی او ایف سی نے آج نیوز کو بتایا۔ شہداء اور جو ریٹائرڈ ہیں ان کے لیے الگ کوٹا ہے، وہ حیات آباد میں ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے۔ ان بھرتیوں سے جہاں ایک طرف اگی کے سینکڑوں نوجوانوں کو روزگار ملے گا، وہاں یہ نوجوان آگے جا کر ملک و قوم کی بہتر انداز میں خدمت بھی کر سکیں گے۔ آصف خان، آج نیوز، اگی۔ شکر گڑھ میں کھاد ڈیلر کے گودام میں مسلح افراد نے لوٹ مار کی، عملے کو یرغمال بنا کر 2 لاکھ روپے بھتہ وصول کیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے پر پولیس نے بھتہ خوری کا مقدمہ درج کر لیا، جس میں 9 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ٹھٹھک کے عوام بھی شدید متاثر ہیں۔ عوام نے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے امر لال سے۔ جی امر لال۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی طرف سے منی بجٹ پاس کرانے کے بعد دعوے کی گئی تھی کہ مہنگائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن منی بجٹ کے پاس ہونے کے بعد پوری طور پر پیٹرولیم کی جو منصوبات ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہے۔ پیٹرول 3 روپے اور ڈیزل بھی 3 روپے بڑھا دی گئے۔ اس سے عام آدمی پر کتنا بوجھ پڑے گا، آئیے عوام سے رابطہ کرتے ہیں کہ عوام کیا کہتی۔ دن ب دن پیٹرول، خاص کر کے پیٹرول بڑھنے سے ہر چیز میں مہنگائی میں جو نا وہ دوگنی ہو جاتی ہے۔ عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ یہ مہنگائی پہ ایکشن لینے کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا الٹ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو نئے فیصلے ہیں انہوں نے غریب لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ جو روز 500 کمانے والا ہے اس کو 200 روپے کرایہ دینا پڑتا ہے، 300 سے گھر نہیں چلتا۔ ہمارا تو یہ اثر ہے کہ کچھ نہ کچھ سستا ہی ہو جائے گا۔ پیٹرول کا گزارا ہے وہ بھی مہنگا ہو رہا ہے۔ جی یہ تو پیٹرول پمپ پر جو پیٹرول بھرانے والے آنے والے لوگ ان کا یہی کہنا ہے کہ بار بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے عام جو آدمی ہے اس کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد آٹومیٹکلی جو کھانے پینے کی اشیاء اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتی جا رہی ہے اس سے کنٹرول کیا جائے۔ کنڈکوٹ کے عوام بھی پیٹرول مہنگا ہونے سے پریشان ہیں، کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کا طوفان ہے، اب ہر چیز مزید مہنگی ہو جائے گی۔ مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے حضور بخش منگی۔ جی بالکل، تبدیلی سرکار کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے پیٹرول کو مہنگا کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی کے باعث عوام در بدر نظر آ رہی ہے۔ عوام مہنگائی کے مارے کیا کہنا چاہے گی، آئیے ہم عوام سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ کھادو پیتو مانگ جو ہر شے مانگ تھی ہے نا، حکومت میں ڈاڈی جو کو غریبن کے تمام تکلیف اچھی ہے۔ ہر نئے دن نیا عذاب ڈال رہے ہیں عوام پہ۔ یہ ہفتے میں 2 مرتبہ پیٹرول بڑھا دیتے ہیں، کبھی کم کرتے ہیں تو 1 روپیہ، بڑھاتے ہیں تو 10 روپیہ۔ ڈالر بڑھا تھوڑا نیچے ہوا تھا، اس لیے پیٹرول ہی نیچے نہیں ہوا۔ کہہ رہے تھے کہ ڈالر بڑھے گا پیٹرول بڑھائیں گے۔ پیٹرول سستا کروں گا، دن بہ دن یہ بڑھتا جا رہے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری سے عوام پریشان ہے۔ جھوٹا بندہ ہے، ہاں بہت جھوٹا بندہ ہے، کامیاب نہیں ہوگا۔
जी, अवाम की बातें आपने सुनी कि कंदकोट के अवाम का कहना है कि ये जो तब्दीली सरकार और रियासत मदीना का दावा करने वाला हुक्मरान बहुत बड़ा झूठा है, जिसके दावे इस वक्त भी जो हैं साबित नहीं हो सके हैं। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। महंगाई के मारे अवाम ने ये मुतालबा किया है कि अब इमरान खान आप हुकूमत छोड़ जाएं, क्योंकि अवाम को वही पुराना पाकिस्तान चाहिए, नया पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें इतनी बड़ी महंगाई के बायस अवाम का एक वक्त का गुजारा भी नहीं हो पा रहा। जी, और अब रुख करेंगे टंडो अलायार में। तो टंडो अलायार में खवातीन के लिए मवेशी मंडी कायम कर दी गई है, जिसमें खवातीन अपने मवेशी फरोख्त करने के लिए मवेशी मंडी में लाई हैं, जहां खरीदार भी खवातीन हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी से। ये मवेशी मंडी जो है सिर्फ खवातीन के लिए लगाई गई है और एक निजी एनजीओ के ताउन से लगाई गई है। ये पाकिस्तान की पहली खवातीन मंडी है जिसमें जो है खवातीन ही जो है सामान माल फरोख्त कर रही है, मवेशी और दीगर सामान, और खवातीन ही खरीदार हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ निजी तंजीम की कारकुन मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने जो है ये मंडी क्यों लगाई है। जी, सिंध और बलूचिस्तान में चल रहा है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की तरफ से, जो कि यूरोपियन यूनियन का फंडेड प्रोजेक्ट है। और हम जो है RDF रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन हमने और UNITC ने मिलकर ये जिलाई इंतजामिया के ताउन से ये मंडी लगाई है, जो कि हर महीने लगेगी। और इसका मकसद यही है कि जो खवातीन हैं जो कि एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का बिजनेस करती हैं, उनको फ़रोग़ दी जाए ताकि वो भी आएँ और खुद जो है वो अपने जानवर बेचें और उनको हम फ़रोग़ दें। जी, आपने सुना कि खवातीन खुद जो है माल मंडी में आ रही हैं और यहाँ पे जो है अपने पाले हुए जानवर जो है फरोख्त कर रही हैं। शरकपुर शरीफ में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरी परेशान हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। मजीद बता रहे हैं शरकपुर से आज न्यूज के नुमाइंदे सैयद तहमासिफ अली नकवी। बजट के बाद महंगाई का तूफान आ चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। इससे शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं और गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से हर चीज बाहर हो चुकी है। इस हवाले से जानते हैं शहरी क्या कहते हैं। महंगाई बहुत हो गई है जी। हुकूमत ने मिनी बजट पास करके ते ये आवाम की कमर तोड़ दी है। 4 रुपए 50 पैसे बिजली के यूनिट महंगा कर दिता है, पेट्रोल महंगा हो गया है। ये अपना जड़ा ना गवर्नमेंट नू चाहिए कि आवाम नू रिलीफ दे। बंदे बहुत परेशान हो रहे हैं, रोटियां तंग होए ने, हर दुकानदार अपनी किराए नहीं दे सके, दुकानें खाली हो रही जा रही है। वहाँ पे पेट्रोल पंप गिराया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। महंगाई आगे बहुत ज्यादा थी और हुकूमत ने चीजों को मिनी बजट के जरिए और महंगा करने का प्रोग्राम दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इकदाम नहीं कर रही। आए रोज पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। लाड़काना के अवाम भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से नाला दिखाई देते हैं। उनका इस पर मजीद क्या कहना है, जानेंगे अपने नुमाइंदे सलामत अबड़ो से। जी सलामत अबड़ो। जी, मुल्क भर की तरह लाड़काना के शहरी भी जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान दिखाई देते हैं। जबकि बात की जाए 2021 साल की तो उसमें भी पूरा साल तकरीबन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में आया। साल 2022 जो है वो भी आगाज उसका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किया गया, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। 15 रोज गुजरने के बाद फिर इजाफा कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद है, बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे, दिन ब दिन इजाफा पेट्रोल में, क्या इमरान खान के वादे आवाम को रिलीफ देने के कहाँ हैं? ये जो दिन ब दिन इनकी बजट, ये मिनी बजट, ये फलां बजट, ये तो हमारे गरीबों का जीना जंजाल कर देती है। हमारी गाड़ियां जो है CNG 3 महीने बंद है, अब पेट्रोल पे गुजारा है। पेट्रोल की ये हर आए 15 दिन नया रेट उनका होता है। इसी हुकूमत की कोई तब्दीली नहीं, कोई वो उनके जो वायदे थे वो उनके पूरे नहीं हुए। इमरान खान घर जाए तो बेहतर है। गरीब आवाम का जीना दुभर हो चुका है और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों को फिलफौर उन्होंने मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि वापस ली जाए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे को। खैरपुर में लुकमान फ्लाईओवर के करीब होटल की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक होटल की छत मखदूश थी जो बारिश के बायस गिर गई। दुनियापुर के अवाम ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत को मुस्तरद कर दिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद महमूद से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसा इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमत पर जो है दुनिया भर के जो शहरी है सख्त नाला दिखाई देते हैं, जिनका कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफा करके हमें जो है हम जीने का हक भी छीन लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अल्लाह ताला इस हुकूमत से हमें निजात दिला दे तो हम शुक्र गुजार होंगे। गरीब आदमी पहले मजबूर है, गरीब आदमी फाकों में मर रहा है, बच्चों को बेचने के लिए गरीब आदमी तैयार है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं प्लीज स्वाम पर तरस खाएं और पेट्रोल की कीमतों को पुरानी कीमतों पर बहाल करें, बल्कि दूसरी जो महंगाई हो रही है उसमें भी कमी की कोशिश करें। जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर हुकूमत से सख्त नाला है, जिनका कहना है कि पेट्रोल पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे, ऊपर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके सरासर जुल्म किया गया है। बदीन के एक गांव में 9 साल की बच्ची की जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। दूल्हा और काजी को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, इस शादी को जो है वो पुलिस ने नाकाम बना दिया, क्योंकि जराये के मुताबिक बच्ची जो है 9 साल है और उसकी उम्र है, उसको वालिद का फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। शादी हो रही थी जहां पर पुलिस को इतला मिली खुफिया, तो पुलिस ने वहां पर छापा मारा और इस वक्त दूल्हा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और निकाह ख्वाह जो वहां पे मौजूद था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। एसएचओ का कहना है कि इनको जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि एसएचओ का ये भी कहना है कि बच्ची की उम्र जो है वो 9 साल है और इस उम्र में उसकी शादी नहीं हो सकती, जबरदस्ती इसका निकाह हो रहा था। तो इस वक्त बच्ची की शादी को जो पुलिस ने रुकवा दिया है और दूल्हा और जो मौलवी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अब्बास अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। घोटकी में पुलिस और डाकुओं का मुबैना गठजोड़ सामने आ गया। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि एसएचओ गुलाम अब्बास बदनाम जमाना डाकू राहा बशर की दावत पर कच्चे में मौजूद हैं। तस्वीर में नजर आने वाले डाकुओं के सर की कीमत हुकूमत सिंध ने 30 लाख रुपए मुकर्रर की हुई है। तस्वीर सामने आने पर अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मिनी बजट के बाद गुजरावाला के बाजारों में महंगाई का तूफान है, जिससे अवाम परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा हबीब से। जी राजा हबीब। जी बिल्कुल, मिनी बजट पेश करते वक्त हुक्मरानों का दावा था कि इससे आम आदमी मुतासर नहीं होगा, लेकिन जमीनी हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ मिनी बजट पेश होने के बाद से मार्केट में महंगाई का एक तूफान है। अशिया खुर्दोनों जो हैं उनकी कीमतों में 10 से 15% तक का रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। आटे का 20 किलो का थैला जो पहले 1100 रुपए में जो है वो मार्केट में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत बढ़कर 1300 रुपए तक जो है वो पहुंच गई है। इसी तरह मिनी बजट पेश होने के बाद से यहाँ मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 4 से 5 रुपए फी किलो का इजाफा देखने में आ रहा है। दूध और चाय की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। इसी तरह जो दालें हैं, हर किस्म की दालों की कीमतों में भी 8 से 10 रुपए फी केजी जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो ताजर हजरात हैं, उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो मजीद बढ़ेगी। जी। अटक की तहसील फतह जंग में पुलिस ने मखवी लड़के को बाजियाब करा लिया। 4 मुल्जिमान को असलहा और गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 14 साल लड़के को तावान के लिए अगवा किया था। ताहम पुलिस ने मुल्जिमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। ननकाना साहब में पुलिस ने बैनुल इदलाई चोर गैंग के 2 कारंदों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी शुदा 3 कार्स, 5 मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद कर ली गई है। तफसीलात बता रही हैं चौधरी अफजल हक। थाना सिटी पुलिस ननकाना साहब ने तकनीकी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए बैनुल इदलाई कार व मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 सरकर्दा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत की 3 मसरूका कारें, 5 मोटरसाइकिलें और 2.5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली। ये गाड़ियाँ यहाँ से चोरी करके ना मुख्तलिफ अजला में दूसरे गैंग के साथ मिलकर फरोख्त करते थे। इसमें जो रिकवरी है ना वो 2 अदद कल्टस कार हैं, कल्टस 1 अदद मेहरान सलूकी है, 5 अदद मोटरसाइकिलें हैं,
और रिकवरी के वक्त जो है ना इनसे अपना गिरफ्तारी में ये 2.5 लाख रुपया वो भी बरामद हुआ है। डीपीओ मंसूर अमान ने एसएचओ थाना सिटी तसब्बुर मुनीर की कारकर्दगी को सराहते हुए पुलिस पार्टी को नकद इनाम और तरीफी सनात देने का ऐलान किया है। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। खैरपुर और घोटकी इजला से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद कौम परस्त रहनुमा और कारकुनान ने कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सक्कर प्रेस क्लब पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अफराद का कहना था कि वो मुल्क और कौम के लिए जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक था और ये सब हम छोड़ के अब पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और अपनी कौम के साथ हैं। इंशाल्लाह हम अपनी कौम की खिदमत करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। आगे जो दोस्त हैं उनको हम कहेंगे कि आप कौमी धारा में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान के अच्छे के लिए काम करें। कल ये ना हो कि आपके नस्ल दर नस्ल तबाह हो जाएं और आप सिर्फ नारे लगाते रहें। सियालकोट में रेस्क्यू 1112 और ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम का इनेकाद किया, जिसमें अवाम को धुंध के बाइस हादसात की रोकथाम से मुतालिक आगाही फराहम की गई और इस मौके पर अवामी में आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए। डीएसपी ट्रैफिक साबिर ने कहा है कि जल्दबाजी आपके लिए खतरे का बाइस बन सकती है। धुंध में एहतियात और मुनासिब फासला रखकर गाड़ी चलाएं। अवाम के ताउन से ही हादसात की शरह को कम किया जा सकता है। खानेवाल में कई रोज से यूरिया खाद का बहरान है, जिसके बायस किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रिपोर्ट करेंगे खानेवाल से मोहम्मद अशरफ। पंजाब भर की तरह खानेवाल में भी जखीरा अंदोजों और खाद माफिया की जानिब से यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से किसानों और काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर जी 3-4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, खाद नहीं मिल रही। कल भी आए, परसों भी आए और आज भी आए हैं। आज तो लाइन लगी हुई थी तो खाद नहीं मिली, उन्होंने नीचे शटर कर दिया। खाद हालांकि पड़ी है। बर वक्त खाद न मिलने की वजह से गंदम और दीगर फसलात की पैदावार भी मुतासर हो रही है। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से किसानों को खाद की सरकारी रेट पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दावे किए जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब किसान और काश्तकार खाद न मिलने का शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं। मेरी 50 एकड़ काश्त है पई गंदम दे जनाब, मैनू एक बोरी खाद दी मिली है। मैं आज तीसरे दिन इतने धक्के ला रहा ब्लैक लियो। असा ब्लैक किवें लईए जी? साडी जड़ियां फसल हैं धान या गंदम है, साडी फसल दा रेट कोई नहीं, खादां दे रेट हैं जनाब। नाइट्रो हुण दे रहे हैं 5700 रुपए, डीएपी 8300 रुपए दे रहे हैं। असा जनाब यूरिया पावने यूरिया हुण नहीं दे रहे। अजर खाद रखी बैठे जी 2500 रुपया 2600 रुपया गट्टू चंदन ब्लैक सस्ती नहीं देते। और अगर कहीं खाद मिल भी रही है तो वो सरकारी रेट 1768 रुपए की बजाय यूरिया खाद 2500 से 3000 रुपए तक में फरोख्त की जा रही है, जबकि डीएपी खाद 9000 रुपए तक में फरोख्त की जा रही है। मुत्तअद्दिद डीलर्स ने मार्केट से खाद गायब करके मसनूई किल्लत पैदा कर दी है और मखसूस लोगों को मनमाने रेट पर खाद फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से किसान और काश्तकार खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। यूरिया खाद का बहरान इसी तरह बरकरार रहा तो इससे न सिर्फ किसान और काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बल्कि गंदम की पैदावार भी मुतासर होगी। हुकूमत को चाहिए कि खाद की सरकारी रेट पर फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज खान। जहानिया में महकमा लाइफ स्टॉक के अमले ने लाइफ स्टॉक ऑफिस में लगे कीमती दरख्त काट डाले। दरख्तों को काट कर सरकारी गाड़ी पर लोड करके मकामी मार्केट में फरोख्त किया गया। मीडिया टीम के पहुंचने पर अहलकार गाड़ियां लेकर भाग निकले। सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल और दरख्तों की फरोख्त पर शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार किया है। अलीपुर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बीएस क्लासेस के लिए नया ब्लॉक बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस मंसूबे पर 12 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक कुरैशी से। जी बिल्कुल, जैसे कि साबका अदवार के अंदर जो हुकूमतें गुजरी हैं उनका एक नारा होता था कि बढ़ो पंजाब, जो कि सिर्फ नारे की हद तक महदूद था। लेकिन आज अलीपुर की जो है तरक्की का जो है सफर शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो है जो हायर एजुकेशन की जो तालीम थी उसका आगाज किया जा रहा है। यहाँ से जो तालिब इल्म थे जो कि बीएस प्रोग्राम के लिए मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, लाहौर या दीगर शहरों के अंदर जाते थे और भारी फीसें अदा किया करते थे, अब जो है अलीपुर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर जो है ये प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। मेरे साथ जो है हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं सैयद सत्तार रज़ा बुखारी, वो मौजूद हैं। यहाँ पे हमने बीएस स्टार्ट करवा दिया था और उसके बाद अब जो है यहाँ पे हमने जो है बीएस ब्लॉक 12 करोड़ की मालियत से हम बीएस ब्लॉक जो है बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे थे तो और उनके लिए जरूरत थी कमरों की। मजीद जो है 6 मज़ामीन में हम इस कॉलेज में मजीद बीएस मज़ामीन बीएस के लेके आ रहे हैं, जिसमें आईटी भी शामिल होगा और फूड एंड साइंसेज शामिल होगा और मजीद मज़ामीन भी होंगे।
तो ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो तालीम की सहूलियात अलीपुर में फराहम की जा सकें। और इस मनसूबे का फायदा तहसील अलीपुर और तहसील जतोई दोनों तहसीलों को होगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है उसमें 12 मज़ामीन में जो है NOC जो है BS का मिल चुका है। यहाँ पे जो है BS प्रोग्राम की 9 क्लासेस का आगाज कर दिया गया था, लेकिन उनके ब्लॉक्स नहीं थे। यहाँ पे जो है वो आज सर्वे करने के लिए आए हैं। उन्होंने यहाँ पे जो है ब्लॉक्स बनाने के लिए जगह देखी है। तकरीबन 12 करोड़ रुपए मालियत से जो है ये ब्लॉक्स जो है वो बनेंगे। मजीद इनका जो है ना ये भी कहना था कि यहाँ पे जो है जो बच्चे जो है जो गरीब के बच्चे थे वो तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते थे। अब जो है यहाँ पे वो BS प्रोग्राम के अंदर वो फ्री तालीम हासिल करेंगे। पेशावर में कमर तोड़ महंगाई ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी है। आटा, चावल और घी सभी आवाम की दस्तरस से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अज़्म रहमान। पेशावर में महंगाई बेकाबू हो गई। आटा, घी, दालें सभी गरीबों की पहुंच से बाहर होने लगी। आटे का 20 किलो का थैला 1450 रुपए से बढ़कर 1480 रुपए का हो गया। इसी तरह 20 किलो चावल की बोरी 3500 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए की हो गई। वो बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए हैं। पहले जो ले रहा था मिसाल 3500 रुपए पे चावल ले रहा था, अभी वो 4000 रुपए पे चला गया है। मोटा चना 2700 पे ले रहे थे, वो 4300 पे चला गया है। तो अब इसमें हालात तो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं अपने मुल्क के। शहरी आए रोज की महंगाई से तंग आ गए। कहते हैं कमर तोड़ महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हर एक मनमानी करता है, अपने रेट अपनी मर्जी से रेट लगाता है और कोई परेशानी हाल नहीं है। मनी बजट क्या होता है और सालाना बजट क्या होता है। कमर तोड़ महंगाई है, हर चीज महंगा है। गोश्त महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगा है, दालें महंगा है, सब चीजें, आटा महंगा है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। यहाँ के लोग ठंड का मुकाबला करने के लिए याक के गोश्त से बनी डिश खाते हैं। देखते हैं गिलगित से ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। यहाँ के लोग मौसम सरमा के दौरान जहाँ गर्म खुराक का इस्तेमाल करके सर्दी का मुकाबला करते हैं, याक के गोश्त और गर्म मसाला जात से तैयार की जाने वाली गर्मा गर्म छप शरो मुकामी लोग शौक से खाते हैं और यहाँ आने वाले सयाह भी इस डिश से लुत्फानंदोज होते हैं। छप शरो है हमारा एक रिवायती खाना जो है वो हम तस्वर करते हैं इसको। और यहाँ पे खुसूसन जो हुंजानगर जो केकेज पे ट्रेवल करते हैं हम लोग, यहाँ पे थोर के मकाम पे रुक के इस डिश से जो है वो यहाँ मुख्तलिफ वो छोटे छोटे पॉइंट्स लगे हुए हैं, यहाँ से खाके बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। छप शरों में याक का गोश्त, प्याज और गर्म मसाले इस्तेमाल करके उसकी रोटी बनाई जाती है। ये डिश गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में साल भर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मौसम सरमा में इसका इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है। ये छप शरो हमारा लोकल डिश होता है। सर्दियों में हमारे गिलगित बल्तिस्तान में लोग जो है ना याक का गोश्त पसंद करते हैं, तो उसको ज्यादा खाते हैं लोग, क्योंकि सर्दियों का आइटम है ये। इसमें मसाले वगैरह भी होते हैं तो और टेस्ट ज्यादा होता है। मौसम सरमा के दौरान मकामी पकवानों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है, जिससे इलाके में मुआशी सरगर्मियों को भी फरोग मिलता है। जलालपुर पीरपाला में पुलिस की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें साइलिन के मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर। जलालपुर पीरवाला में पुलिस की जानिब से थाना सदर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में SP सदर मुल्तान अहमद नवाज शाह ने साइलिन से पुलिस से दरपेश मसाइल सुने और इनके हल के लिए अहकामात जारी किए। लोग जो है हो सकता है अगर ये जलालपुर सुल्तान जाते, मैं ना मिलता, मैं मीटिंग पे होता, इनका वक्त भी जाया होता, इनका पैसा भी जाया होता। कम से कम इतनी तसल्ली हो जाती कि जो आज जो बंदे यहाँ पर हैं उनको हमने उनके घर आके सुन लिया और जो उनके जायज हैं मसाइल उसको हल करने की कोशिश की और मौके पर सपोर्टर्स की है। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान समेत साइलिन की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अयाज ताहिर, आज न्यूज जलालपुर पीरवाला। सांगड़ में स्कूल और कॉलेजेस में खेलों का हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसमें तलबा और तालिबात भरपूर शिरकत कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान खास खेली। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा के अहकामात पर स्कूल व कॉलेज में खेलों का हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में बॉयज और गर्ल्स कॉलेज और स्कूल की टीमें भरपूर हिस्सा ले रही हैं। खेलों में बैडमिंटन, रस्साकशी, फुटबॉल व दीगर खेल शामिल हैं। तो यही कहूंगी कि खेलना चाहिए, निकलना चाहिए बाहर
आप बाहर जाएंगे, खेलेंगे, आगे जाएंगे, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है खेल कर। बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी बात है कि तलीमी सरगर्मियों के साथ हमें इस तरह की भी सरगर्मियां करवाई जा रही हैं स्कूल में, और ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह जीतने के लिए आए हैं और जीत के ही जाएंगे। स्पोर्ट फोकल पर्सन व दीगर ने कहा कि निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां लाजमी है। इससे बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है। की कमी है, फुकदान है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है जो हमारे पास यहाँ पर डीसी साहब की सपोर्ट से हो रही है और उनकी डायरेक्शंस की वजह से हो रही है। आपकी तरफ रहे सारा दिन तो उनका दिमाग जो है, जिस्म जो है ना, वो इतना ज्यादा एक किस्म का मफलूज हो जाता है। निसाब के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां जरूर होनी चाहिए ताकि बच्चे एक्टिव रहे, उनका दिमाग फ्रेश रहे। पढ़ने के बाद 2 मिनट के लिए अगर वो ग्राउंड में आके खेल लेंगे। शहरियों की जानिब से कॉलेज व स्कूल में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल को खूब सराहा है। कहा है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। अब्दुर्रहमान खास के लिए आज न्यूज सांगा। आरिफ वाला में इंतजामिया ने एहसास दीवार कायम कर दी, जहां गरीब अफराद को गर्म मलबूसात फराहम किए जा रहे हैं। मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इंतजामिया ने मुखय्यर हजरात के तामुन से बल्दिया चौक में दीवार एहसास कायम कर दी, जहां पर मुस्तहिक मर्दों खवातीन को गर्म कपड़े, रजाइयां और जर्सियां फराहम की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू का कहना है कि कार खैर में सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रेडी कस्टमर को वेरीफाई करके उनको ये चीजें डिलीवर की जा रही हैं। तो इसमें जो हमारे तहसील आरफ वाले के मुखय्यर हजरात हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये उनकी ही ऑप्शन से, ये उनकी ही इमदाद से ये चीजें हम मैनेज कर रहे हैं। दीवार एहसास का कयाम यकीनन काबिल सत्ताइश है, जिससे गरीब और नादार अफराद को किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर गर्म मलबूसात मिलेंगी। कंप्यूटर और मोबाइल फोन के दौर में आज भी लोग कुतुब बीनी से मुस्तफीद हो रहे हैं। कराची में किताबों के इतवार बाजार की गहमा गहमी बता रहे हैं सफदर अब्बास इस रिपोर्ट में। ये कराची में रीगल चौक की एक गली के मनाजिर हैं। यहाँ हर इतवार को पुरानी किताबों की खरीदो फरोख्त की जाती है। गली में दोनों जानिब बंद दुकानों के बाहर किताबों के स्टॉल्स हैं। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद हर इतवार को यहाँ आते हैं और अपनी पसंदीदा किताबें खरीद लेते हैं। हम जब भी कराची आते हैं तो कराची में जब इतवार के दिन जो बुक्स की स्टॉल लगती है तो हम जरूर यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। बाजार अच्छा है, किताबें सस्ती मिल जाती है। यही शोरूम पे रखी होंगी तो बहुत महंगी है। यहाँ जो है ना मुख्तलिफ राइटर्स की मुख्तलिफ किताबें मिलती हैं और बहुत अच्छी मिल जाती हैं, जो आम मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। मेरा लॉ का होता है किताबें, और इसके अलावा मेडिकल है, अकाउंट्स हैं, तो मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड किताबें ले रहा होता हूँ। इस्लामी बुक्स और हिस्ट्री की बुक्स जैसे मुगल एम्पायर्स की हैं, उस तरह की बुक्स मैंने बाई की हैं। जब आपके पास तन्हाई के लम्हात ना गुजर रहे हों तो उस वक्त किताब से अच्छा कोई साथी नहीं होता। इस बाजार में न सिर्फ उर्दू बल्कि अंग्रेजी, फारसी, अरबी जबान में भी किताबें मौजूद हैं। मेरे पास उर्दू अदब से लेकर इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी और मयारी किताब, शायरी, सब किताबें मौजूद हैं मेरे पास। बहुत ही बारियात ये देखें आप स्टॉल पे कि 50 रुपए की सेल है, 100 रुपए की सेल है। जो 1000-2000 रुपए की किताबें हैं वो हम यहाँ 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए में किताबें देते हैं। किताबों के समंदर में इस्लाम, तारीख, अदब, शायरी, फलसफा, ड्रामा, नॉवेल, खवातीन और बच्चों से मुतालिक किताबें भी दस्तयाब हैं। किताबों के इन स्टॉल्स पर शहरियों की भरपूर दिलचस्पी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आज भी लोगों के दिलों में कुतुब बीनी का शौक मौजूद है। कैमरामैन वारिस हुसैन के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज़ाद इकबाल के शेरी मजमूए की तारीफी तकरीब कराची में मुनक्किद हुई। दानिश्वरों ने बैरिस्टर आज़ाद इकबाल और इनके मजमूए को खुशाइन करार दिया। कामरान शेख की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के पिसरजादे बैरिस्टर आज़ाद इकबाल के शेरी मजमूए दानाए राज की तारुफी तकरीब कराची गुलिस्तानी जौहर में कायम अंजुमन तरक्की उर्दू के मरकजी दफ्तर में हुई। प्रोफेसर जास्मीन सुल्ताना फारूकी और दीगर शुरा ने शेरी मजमूए पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस शेरी मजमूए में फिक्र इकबाल नुमाया है। दानाए राज की तकरीब रूनुमाई हुई और माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई। शहर के काफी मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की, अदीबों, शायरों की बड़ी तादाद आई। शायरी का शौक, मौसीकी का शौक बचपन से था और आज उस ख्वाब की तकमील हुई। इसने बहुत अरसे से मुझे बेचैन कर रखा था और आज मेरे दीवान की इशाअत के बाद आज इसका लॉन्च हुआ है, रूनुमाई हुई है। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि मैं
جو ہے علامہ اقبال صاحب کے پسرزادے کی اس تقریب میں شامل ہوا اور اس کے لیے میں مشکور ہوں. کتاب کی ان کی رونمائی اتنی شاندار اور جس طرح ان کا خاندانی پس منظر بھی ہے کہ وہ اقبال صاحب کے پوتے ہیں اور ان کی نظموں سے ان کی شاعری سے ان کا عکس بالکل جھلکتا ہے. تقریب میں معروف شاعرہ زہرا نگر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سفارتکار عطیہ محمود، پروفیسر خیال آفاقی، پروفیسر شاداب احسانی، پروفیسر یاسمین سلطانہ فاروقی، سید عابد رضوی، زاہدہ ہنا، واجد جواد سمیت دیگر دانشور اور معززین بھی تقریب میں شامل تھے. بھلوال میں بلدیہ کے زیر اہتمام ویٹ لفٹنگ، پاور لفٹنگ اور ایتھلیٹکس کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں رضوان احمد اس رپورٹ میں. بلدیہ بھلوال میں مختلف کیٹیگری کے ویٹ لفٹنگ، پاور لفٹنگ اور ایتھلیٹکس کے 15 روزہ مقابلہ جات کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار نے کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ تحصیلدار نعیم جان نثار، انٹرنیشنل ویٹ لفٹرز ڈاکٹر طارق خان، انصر اقبال اور محمود ہیرا بھی موجود تھے. ویٹ لفٹنگ اور پاور لفٹنگ کے مقابلہ جات میں 6 کلبوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا. ویٹ لفٹنگ کی 10 کیٹیگریز میں کھلاڑیوں نے 55 کلو سے لے کر 109 پلس کلو گرام تک وزن اٹھایا. پاور لفٹنگ کے مقابلہ جات میں بھلوال پاور جم کے سیمسون ایوب نے 243 کلو گرام وزن اٹھا کر نیا ریکارڈ قائم کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے مقابلہ جات کے انعقاد کے باعث ہسپتال آباد ہو رہے ہیں اور میدان ویران ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ہاسپٹل جو ہے وہ زیادہ آباد ہو رہے ہیں، میدان جو ہے وہ ویران ہو رہے ہیں، تو یہ میدانوں کا آباد ہونا چاہیے. انٹرنیشنل ویٹ لفٹر ڈاکٹر طارق محمود خان نے مقابلہ جات کے انعقاد کا خیر مقدم کیا. جھپٹنا پلٹنا صاحب بلوال سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ صحت مندانہ سرگرمیوں کا آغاز کیا. مقابلہ جات 23 جنوری تک جاری رہیں گے. بلا شبہ صحت مند نوجوان معاشرتی ترقی میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. رضوان احمد ساگر، آج نیوز بھلوال. علاقہ کرک امن اور پشتون روایت کا امین ہے. غیر ملکی سیاح بھی تاریخی علاقے دیکھنے کرک پہنچ گئے. مزید احوال بتائیں گے سب سلی اپنی اس رپورٹ میں. کرک جو کہ تعلیم اور امن کے لحاظ سے ملکی سطح پر اپنی مثال آپ ہے، اب سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی بن رہا ہے. تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے جوڑے پونگ ترین اور چنگرت نے سیاحت کے حوالے سے کرک کے کئی علاقے دیکھے. So far I've been traveling in Pakistan for over a month, and this is my first time in Karak region, and as you can see here, everybody are so welcoming and I feel completely safe here. جوڑے نے علاقہ جونترا میں والی بال میچ دیکھا اور مقامی لوگوں سے گھل مل گئے. Really cozy and it's beautiful. People have a warm welcome me. I feel appreciate. سیاح جوڑے نے کہا کہ پاکستان سیاحت کے لیے ایک بہترین پرامن اور پرفضا ملک ہے. یہاں کے عوام کا رہن سہن اور مہمان نوازی بے مثال ہے. اسپیشلی ہمارا کرک ڈسٹرکٹ سب سے پرامن علاقہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکورٹی کے حوالے سے دوسرے ممالک کے لوگ ڈر کے آتے ہیں، لیکن کرک میں بالکل یہ بغیر خوف و ہراس کے گھومتے پھرتے ہیں. کرک جو کہ قدرتی وسائل سمیت قدرتی حسن سے مالا مال ہے، حکومت کو چاہیے کہ پرامن ضلع میں سیاحت کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے. کیمرہ مین یاسر خٹک کے ساتھ سبز علی، آج نیوز کرک. سوات میں صوبے کی دوسری بڑی زرعی یونیورسٹی کا تعمیراتی کام جاری ہے. 9 ارب روپے کی لاگت کا یہ منصوبہ کب مکمل کیا جائے گا؟ تفصیلات بتا رہے ہیں انور انجم اپنی اس رپورٹ میں. سوات کی تحصیل ماٹا میں صوبے کی دوسری بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی کی تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے. اب تک تقریباً 20% تعمیراتی کام ہو چکا ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی سوات کا جو ٹوٹل احاطہ ہے 421 کنال، اس کا سول ورک کا جو ایکڈیمک بلاک سے اور ہاسٹل سے 48 کنال اس کا اپروچ روڈ ہے. 2 کنال ٹیوبویل کے لیے ہم نے ایکوزیشن کی ہے اور تقریباً 120 کنال جو ریسرچ فارم کے لیے. تو کل ملا کے یہ راؤنڈ اباؤٹ 600 کنال تک یہ پہنچ جائے گی ٹوٹل ایریاز کی. سوات ایگریکلچر یونیورسٹی 421 کنال کے رقبے پر محیط ہے، جس پر 9 ارب روپے کی خطیر لاگت آئے گی. منصوبے کو جون 2023 تک مکمل کیا جائے گا. اس میں ہر قسم کی فیسیلیٹیشن اویلیبل ہے. ریکریشن سینٹر اس میں ہے، اس میں جمس ہے، اس میں پارکس ہے، اس میں لیڈیز ہیلتھ کے لیے جو سینٹرز ہیں وہ بنائے گئے ہیں. گرلز ہاسٹل اس میں 2-3 ہے، اس میں بوائز ہاسٹل بھی ہے، اس میں اسٹاف فلیٹس بھی ہے، اس میں 5-6 ایکڈیمک بلاکس بھی ہے، اس میں کلائمیٹ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ آج.ٹی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے آج نیوز.